Assalamu alaikum, dear students. I'm going to discuss chapter number 1 of history, and the title is Tracing Change Through 1,000 Years. Firstly, keep in mind, dears, that some changes has been including NCERT syllabus in your previous books. The chapter was named as Periodization and Major Development, but now it is named as Tracing Change Through 1,000 Years. Content and topic were almost same. Then in this chapter, we read about medieval history. In 6th class, study about ancient history. 7th, medieval history. And the 8th is modern history. What is medieval history? The history between ancient and modern. जो उसके सेंटर की हिस्ट्री, जो उसके बिटवीन की हिस्ट्री जो है, उसे हम मेडिवल हिस्ट्री कहेंगे. और जो हम 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ने वाले, फ्रॉम 700 to 750 AD का. फर्स्टली तो जो चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1,000 years. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री के उन चेंजेस के बारे में जो ओकर हुई हैं इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के 1000 ईयर के बीच में. देन फर्स्ट जो चेंज आई है इसमें, यूज ऑफ मैप. देर आर 2 types of map in this chapter. The first one is which is drawn by al-Idrisi and Arab geographer or cartographer. You know what is cartographer? A person who make maps. वो आदमी, वो person जो क्या करे, maps को बनाता, उसे हम cartographer बोलते हैं. Then what is cartography? The art of making map is called cartography. वो person जो मैप बनाता है उसे cartographer कहते हैं, और वो आर्ट जिसके थ्रू मैप बनता है उसे हम cartography कहते हैं. फर्स्टली जो अल-इदरीसी था, ये एक अरब जियोग्राफर था. देन इसने पूरे वर्ल्ड का एरिया ट्रेवल किया. देन एक मैप ड्रा किया. वन ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट ही ड्रा इन 1154 CE कॉमन एरा was showing Indian subcontinents. But here we can that he had shown North India as south and south as north. इसने क्या किया, जो नॉर्थ था, नॉर्थ का पोर्शन साउथ में और साउथ का पोर्शन नॉर्थ में शो किया. लाइक दैट श्रीलंका ऑन द टॉप एंड इंडिया ऑन द बॉटम. जो श्रीलंका था उसको टॉप पे शो किया और इंडिया को बॉटम पे शो किया. और जो प्लेसेस के नेम थे इस मैप में, मैप 1 में जो प्लेसेस के नेम थे वो अरेबिक लैंग्वेज में दिए गए थे. देन व्हेन वी टॉक अबाउट मैप सेकंड इज ड्रॉन बाय फ्रेंच cartographer and the name was Bisley. This map is drawn in 1720 and he have shown in India as how we can it as modern map and coastal area were accurately pointed. इसने ये जो सेकंड मैप था ये हमारे जो मॉडर्न मैप से बिल्कुल मिलता जुलता है. देन जो कोस्टल एरिया थे काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट किए गए थे, अच्छे तरीके से हमें पता चल रहा था कौन सा एरिया है. देन so from these two maps, what we learned from these two maps, map 1 and map 2, we can say that historian have to very carefully while studying history using map or such things, because these things differ from time to time and from person to person, and historical sources may not always be accurately. बिकॉज ये कि जो पहला मैप बना है हमें ये रखना है माइंड में कि उस टाइम बैकग्राउंड क्या था और कौन सी डेवलपमेंट अवेलेबल थी, और जो बाद में जो मैप बना है उसमें उसका बैकग्राउंड क्या था और उस टाइम कौन सी डेवलपमेंट थी. काफ़ी पहले टाइम और सेकेंड टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट आई हैं, काफ़ी चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से जो मैप था वो दिखने ही में आपको पता चल रहा है कि मैप बिल्कुल टोटली उसके मतलब दूसरे के कंपेयर में काफ़ी चेंज है. So this was what we learned on first glance of the chapter. Now the second change is new and old terminology. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए terminology क्या होती है. What is the meaning of terminology? Terminology means word or expression used by particular subject or activity. Terminology वो वर्ड या वो एक्सप्रेशन होते हैं जो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं. For example, we can say that medieval person in person different from modern person, or we can also say that today's Urdu is different from that old time. So
it from time to time, and word and expression for a thing or subject changes. In medieval time, Hindustan is a terminology, was a common term used for India. medieval टाइम में जो हिंदुस्तान जो टर्मिनोलॉजी दी गई थी, कॉमन टर्म किसके लिए? इंडिया के लिए. मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज ओवर द सेंचुरीज. पर्शियन क्रॉनिकर जो थे, क्रॉनिकर होता है वन हु कीप्स रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. पहले जो पर्शियन जो क्रॉनिकर आए हैं, मिनाज आई सिराज, उनके अकॉर्डिंग जो एरिया था, द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. इनने जो हिंदुस्तान का जो भी एरिया जो डिस्क्राइब किया कि जो एरिया पंजाब, हरियाणा और लैंड गंगा और यमुना के बिटवीन का, ये सारा हिंदुस्तान का एरिया इन्होंने डिस्क्राइब किया. देन ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड दैट वी अंडर दिल्ली सल्तनत. देन इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था वो सारा डिनोट किया हिंदुस्तान के अंडर. देन इसके बाद जब बाबर आए, द जियोग्राफी, द फ्लोरा एंड फना, द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. इन्होंने जो फ्लोरा एंड फना का जो भी एरिया था वो सारा हिंदुस्तान में इन्वॉल्व किया. देन अमीर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन अ सिमिलर वे. उन्होंने भी सिमिलर वे में हिंद जो टर्म था यूज किया. आमिर खुसरो हु इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, उन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. देन टुडे, आज की बात की जाए, द मॉडर्न नेशन स्टेट. हिंदुस्तान को कहा गया द मॉडर्न नेशन स्टेट. इट मीन्स द वर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूज फॉर होल इंडिया. ये जो हिंदुस्तान वर्ड था ये पूरे हिंदुस्तान के लिए यूज किया जाने लगा. दैट अब हम मीनिंग ऑफ टर्म फॉरेनर हैज चेंज ओवर द सेंचुरीज. पास्ट की बात की जाए, फॉरेनर कौन था? अ स्ट्रेंजर हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर. वो स्ट्रेंजर जो सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं है, चाहे वो दूसरे विलेज से ही क्यों ना आया हो, उसे फॉरेनर डिनोट किया जाता था. देन आज अगर प्रेजेंट की बात की जाए, समवन हु इज नॉट एन इंडियन, वो जो इंडियन नहीं है उसे हम फॉरेनर कहेंगे. These are the two changes. The next change is historian and their sources. Historian and their sources. It is the third change in this chapter. Sources available to the historian for a study of the past. जो sources थे ये हमें historian को available होते थे study of past के through. जो sources used historian ने किए पहले टाइम में, उन्हें और archaeological evidence कहने लगे. लाइक दैट कॉइन, इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन होता है जो हमें किसी वॉल पे लिखा हुआ या फिर किसी स्टोन पे लिखा हुआ जो मिलेगा उसे हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे. देन आर्किटेक्चर्स लाइक फोर्ट्स, टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स. देन पेंटिंग्स, जो हमें पेंटिंग से मिलता था. देन बाय द इन्वेंशन ऑफ पेपर. से पेपर की इन्वेंशन हुई तो ये जो सोर्सेज थे ये हमें लिटरली एविडेंस की फॉर्म में मिलने लगे. लाइक दैट लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, manuscripts, petition and judicial records, chronicles of rulers. What is the meaning of manuscripts? Manuscripts is the original handwriting documents. ये एक original handwriting documents होती थी. Then use of paper for writing manuscripts. जो use of paper जो थे writing manuscripts के लिए. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, ministries and temples. They were placed in libraries as well as archives. बट द यूज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट. ये जो यूज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट से काफी डिफिकल्ट होता था. स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. जो स्क्राइब्स थे ये क्या करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपीड करते थे अपने हैंड से. हु इज स्क्राइब्स? स्क्राइब अ पर्सन हु राइट बुक और डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड एज अ प्रोफेशन. देन डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस्ड इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. कौन सी डिफिकल्टीज हिस्टोरियन को आने लगी जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वो यूज करने लगे? देन स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस न्यूमरस चेंज इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हाइल कॉपिंग बिकॉज ऑफ लेस लेजिबल हैंडराइटिंग. जो स्क्राइब्स थे ये क्या करते थे? जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, अगर इन केस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ क्लियर नहीं है, ये उसमें कुछ अपना एडिशन करते थे अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जो इनको सूटेबल लगता था उसमें ऐड कर देते थे. If one's manuscripts can be written in four or three times by different scribes, अगर एक मैन्यूस्क्रिप्ट 2 या 3 स्क्राइब्स के थ्रू लिखी जाती थी तो obviously manuscripts can be changed. जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स होगी वो तो obviously प्रीवियस के अकॉर्डिंग चेंज ही होगी. देन
अगर in case original manuscripts are rarely changed, as a result historian have to read different manuscripts. देन अगर किसी हिस्टोरियन को क्या होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो वो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको रीड आउट करता था, इसलिए ताकि उसे ये पता चले कि फाइनल देन ओरिजिनल में इसमें लिखा क्या है, ये क्या बोल रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स. देन क्रॉनिकल होता है जो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं. वन हु कीप इन पास्ट इवेंट रिकॉर्ड्स. देन इन 14th सेंचुरी की बात की जाए, जिनाउद्दीन बुरहानी जो थे, इन्होंने रॉट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 में इन्होंने अपनी क्रॉनिकल लिखी है. देन जो सेकंड थी एंड रॉट अनदर वर्जन, इन्होंने सेकंड वर्जन उसके ठीक 2 साल बाद लिखा है. बोथ द वर्जन वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों वर्जन थे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे. हिस्टोरियन वर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द अर्लियर वर्जन टिल 1960. लेकिन जो हिस्टोरियन को पहला वर्जन 1960 में मिला, क्योंकि वो काफ़ी जो बड़ी लाइब्रेरीज में थे उनमें कहीं खो गया था और वो काफ़ी टाइम के बाद उन्हें मिला है.